everyone, welcome to Shauryaverse. This is your host Shaurya, and today we go into a world where a line of code turns into a brand story. But technology is not just a tool, it is a language. And where one young woman from Nagpur built not just a company but an entire ecosystem. We are talking about entrepreneurship, where we build something from nothing, where we cross the bridge between a brilliant idea and a thriving business, and what it actually takes to cross it. Today, here, my guest has done exactly that. Ms. Tejaswini Bhandarkar is a computer science engineer and an MTech graduate. But she did not just stop there. She went forward to become the founder and CEO of Testech, a full digital spectrum company, which has its root in Nagpur but spread across pan India and global service enterprise. Testech is not just an IT company. It is a movement. It is a thriving community. She is also a keynote speaker, a startup mentor, and a business strategist. Someone who doesn't just build their own business, but help others build theirs too. So that is my guest, Ms. Tejaswini. I welcome you to Shauryaverse. It is a honor to have you here. Thank you. Thank you. Pleasure is all mine. Yeah. Let's move forward to the questions. Can you start by telling a little about yourself and what your company does in a way that someone who hasn't even heard the term of IT and branding Yes. can understand? Hi everyone. I am Tejaswini Bhandarkar. I am a computer science engineer and a happy-go-lucky soul, and I have a burning fire, right? That I have started my business 5-6 years back, which is my baby, called as Taste Tech now. So we are one complete solution IT branding and advertising company. What it actually does is, बहुत लोग पूछते हैं कि वन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, तो वी हैव ट्राइड टू बिल्ड इट इन तेस्टेक, जिसमें हम सारे आईटी डोमेन्स कवर करते हैं, राइट फ्रॉम वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे एआई टेक्नोलॉजीज ऑल्सो. वी बिल्ट सॉफ्टवेयर्स इन दैट. देन डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं होती है. सोशल मीडिया के साथ भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक पीआर, सेलिब्रिटी, ई कॉमर्स, देन एसईओ, राइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो अराउंड वी ट्राई टू अकम्प्लिश ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एंड पैटर्न्स, दैट इज विच मेक्स अस स्पेशलाइज्ड इन ब्रांड बिल्डिंग. एंड इसके साथ हम क्रिएटिव डोमेन्स भी कवर करते हैं, जो कि ब्रांडिंग का पार्ट आता है, दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, creative animations and role. So it makes Tastech one complete solution, that is IT branding and advertising. We start from brand to just portray the brand from scratch till it rules the market. So that is what we are specialized in. And yes. What I find remarkable about this is that what you have built covers so many areas. So it's like one big vision. But every big vision starts from small little steps. Okay. So, what was the moment or experience in your life that you realized that you wanted to build something, that you wanted to make it in this field? Was there a person, a role model, or maybe something somewhere inspired you? Yes, now I recollect, जब मैं स्टैंडर्ड में थी ना, मैं जब अपने क्लासरूम में बैठती थी तो मेरे जस्ट अपोजिट में ना एक टैगलाइन हुआ करती थी. मैं जब भी वहाँ जाती थी, बैठती थी, तो आई यूज टू रीड दैट टैगलाइन, विच इज़ ग्रेट होप्स मेक्स ग्रेट मैन, राइट, विच रियली इंस्पायर्ड मी. बट जैसे कि मेरा एजुकेशन हुआ, आई स्टार्टेड माई करियर विद जॉब, राइट. आई वॉज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर इन वन ऑफ द वेल नोन MNCs. एंड उसके बाद ऐसा था कि वो जो एक टैगलाइन थी वो मन में थी हमेशा, बट कैसे अपॉर्चुनिटीज़ या दिमाग में ये नहीं आया था कि मुझे एग्जैक्टली वो अचीव कैसे करना है. एग्जैक्टली. तो जैसे ही हम चीज़ें आगे जाती है, तो हमें ना बहुत सारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो
क्लियर करते हैं हमारे विजन को. तो आई Yes. मस्ट से इन माई केस डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आईटी में तो आपको पता है कि स्विच किया जाता है. सो आई स्विच टू मुंबई इन जियो, बट एक ऐसा था, एक सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो Yeah. कुछ तो समथिंग मिसिंग. सो आई Yeah. स्टार्टेड विथ फ्रीलांसिंग, है ना. Okay. एंड विच इज़ माई कोर सेक्टर, दैट इज़ वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप. इसी के हम प्रोजेक्ट्स लेते थे. तो चीज़ें करते 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 देन it becomes a vision, then Yeah. it becomes a company, people start accompany us, which builds a great team, and we are here. So in my case, destiny plays a very important role in clearing the vision, what I actually want to pursue. But now I must say that tagline plays a very important role. हाँ, वो tagline का meaning मुझे बहुत बाद में समझ में आया, बट या इट्स रियली इम्पैक्टफुल. एंड अगर आप किसी चीज़ के लिए बने होते हो तो डेस्टिनी और नेचर ना आपको वो कर करके सिखा जाता है. मतलब आप कुछ Makes you और कर, realize. एग्जैक्टली Yeah. आप कुछ और कर रहे हो, वो आपको यहाँ से ऐसे उठा के यहाँ रख देगा कि यू आर मेड फॉर दिस. Yes, you're meant for that. एग्जैक्टली. Exactly. It's very important to actually follow your heart, your passion. Only from having an idea to actually building a company is very difficult. So what were some of the biggest challenges that you have faced in your personal journey? यस. मैंने जो शुरुआत में आपको बताया, मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मुझे कंपनी बनाना है. Yeah, ठीक है, exactly. आई वॉन्ट टू डू समथिंग जो मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है. सो आई स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग. एंड हमारा आईटी डोमेन ऐसा है ना कि इसमें फंडिंग्स नहीं लगती है. इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि रहता है आपका दिमाग, एंड आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, जो कि आजकल के इसमें मैक्सिमम लोगों के पास रहता है. ठीक है, मैं दिमाग की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लैपटॉप, Yes. राइट. सो आई हैव स्टार्टेड विद दीज टू थिंग्स माई बिजनेस जर्नी. एंड एट स्टार्ट आई डोंट हैव एनी विजन, बट आई हैव स्टार्टेड इट कि मुझे अच्छा लग रहा है. मैं जब सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करती हूँ एंड मोबाइल Okay. एप्लीकेशंस पे वर्क करती हूँ, सो आई हैव स्टार्टेड विद दीज टू थिंग्स. फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिस पे मैंने वर्क किया, जो अच्छा हुआ. उसके बाद माउथ पब्लिसिटी से मैनी रिकमेंडेशन कम्स, है ना. एंड माई फैमिली ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. मतलब आई बिलोंग फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड. Okay. तो मेरे पापा का ऐसा था कि जो करना है करो, अगर नहीं जम रहा तो यू स्विच टू जॉब. और भाई का भी था स्टार्ट में ऐसा कि ठीक है करो, बट आई मस्ट से ही इज़ द मोटिवेटर. उसे पता था, उसने शायद ये चीज़ भाप ली थी कि मैं बिजनेस या इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ. सो ही हेल्प्स मी इन बीइंग गुड नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो मैं वैसे लोगों के साथ रही हूँ, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ देखी है. बिजनेस डिसिप्लिन मैंने सीखा है, क्योंकि मैं तो बिजनेस बैकग्राउंड से हुई नहीं. सो Yes. बिजनेस में रह के बिजनेस डिसिप्लिन सीखना एंड वो अचीव करना, इसके लिए सही लोगों के साथ, सही नेटवर्किंग Yeah. ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना बहुत ज़रूरी रहता है. सो माई फैमिली ऑलवेज मोटिवेट मी टू गो फॉर दिस इवेंट, टू बी अ पार्ट ऑफ सर्टन वेरी गुड नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो भी मुझे बहुत हेल्प हुई विजन क्लियर होने में, पिक्चर क्लियर होने में कि क्या करना है. एंड आई मस्ट से जब आपका विजन क्लियर हो जाता है ना, तो आपके पास कोई भी चैलेंजेस क्यों नहीं हो. जनरली मेजर चैलेंजेस इन बिजनेस इज फंड, प्लेस, है ना, एंड लोग. ये Yes. यस, सही लोग नहीं होते हैं. You ठीक need a है, supportive team. एग्जैक्टली. तो जब आपका विजन क्लियर हो जाता है ना, तो जो चैलेंजेस है, ठीक है, वो चैलेंजेस वो हडल्स नहीं बनते. ठीक है, उसको आप एक के पार एक आप करते चलते हो. जैसे जब शुरुआत में व्हेन आई हैव स्टार्टेड, आई रजिस्टर्ड माय कंपनी, जब विजन क्लियर हुआ कि नहीं अब तो यही करना है ना, Yes. कि इसी को बढ़ाना है एंड इसी में मुझे मज़ा आ रहा है. तो व्हेन आई रजिस्टर्ड माय कंपनी, सही लोग ये करना. तो शुरुआत से आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ डूइंग सेल्स, हु इज़ डूइंग मार्केटिंग, हु इज़ डूइंग कोडिंग एंड हु इज़ डूइंग हायरिंग. मतलब मैंने शुरुआत ऐसी करी थी कि सारी चीज़ें मैं ही कर रही हूँ. Yeah, it starts with a one person. एग्जैक्टली. तो उसके बाद फिर सही लोग मिलते गए. अब सही लोग जब मुझे मिलते गए, मैंने ये नहीं देखा कि वो इंटेलिजेंट है या उसे इस डोमेन का नॉलेज है. ठीक है, आई हैव सीन ओनली वन थिंग कि ही और शी मस्ट बी कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग.
सिखा तो मैं दूंगी, It's important. Yes. If you have those skills, you can learn anything. एग्जैक्टली तो और आज भी है जब हम लोग ये मतलब हम लोग काफ़ी हायरिंग्स करते हैं तो ये दो चीज़ें ही हम देखते हैं कि हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो। सिखा तो हम देंगे क्योंकि इट्स वेरी इजी है ना, नाउ AI टूल्स एंड ऑल मेड इट वेरी इजी, बट व्हाट यू नीड टू अचीव अ रिस्पेक्टिव गोल इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी एंड अ हार्ड वर्किंग एंड लर्निंग एटीट्यूड टू। Yes. सो ऐसे लोग मिलते गए, फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि फायर भी करना पड़ा, नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैंने सर्टन रूल्स रेगुलेशंस या डिसिप्लिन जो था ना, मैंने पास्ट में जॉब किया था, सो वहाँ जो मैंने चीज़ें सीखी थी कि MNC कैसे वर्क करती है। Important you had an idea how things work. Exactly. So how system works basically, how system makes people work accordingly. तो और क्या उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। अगर आप IT सेक्टर के बारे में जानते हैं तो यू गॉट टू नो कि हायरिंग फायरिंग टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग यू आर प्रमोटेड, इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू आर गेटिंग फायर्ड, राइट। सो वहाँ परफॉर्मेंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ना कुछ HR के कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, एक हाउ एन एम्प्लॉय शुड परफॉर्म सो दैट ही और शी गेट प्रमोटेड। इनफैक्ट हाइक भी कैसे देना चाहिए उसके भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर डेस्टिनी को आपको कहीं जाना मतलब पहुंचाना होता है ना, तो वो पहले आपको सिखाता है, शायद तोड़ मरोड़ के सिखाए, बट ही विल मेक यू फुल्ली ट्रेन। It'll make you ready for what you are meant made for. Exactly. तो मेरे केस में the job और the IT background where I did, it plays a very important role क्योंकि मैंने systems बहुत अच्छे से learn कर लिए थे। experience also. Exactly. तो अगर मैं सही चीज़ें एक साथ भी मैनेज कर रही हूँ तो भी मुझे पता था कि चीज़ें हो जाएगी, एंड systems helps me a lot in putting team together for a single vision which we want to achieve. तो चैलेंजेस बहुत, अगर आपकी सही टीम आपके साथ है तो चैलेंजेस एक्सक्यूजेस नहीं बनते हैं, चैलेंजेस एक के बाद एक कंप्लीट होते रहते हैं। एग्जैक्टली। एंड बिजनेस जर्नी इज ऑलवेज रिस्की एंड इसमें चैलेंजेस तो हमेशा आएंगे, बट अ बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स लविंग इट। अगर जिस दिन कोई चैलेंज नहीं हो कि मुझे इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है, तो एक जो किक रहती है इन जेंजीज टर्म या जो मज़ा रहता है, राइट, वो भी एक लैक हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस, बट व्हेन यू हैव it comes with it. Yes, it comes with it. And when you have right team with you or right people with you, when your family is supporting you and motivating you, so nobody can stop you. That I believe. It really matters who you surround yourself with. Yes. It shapes how you are and it shapes how you think. So it's really important. Okay, let's move forward to IT and employment. Okay, so basic question: what is an IT industry and what do people do there? Yes, IT is the biggest growing economy throughout world, I must say. IT में लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को ये रहता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर्स और मतलब डिज़ाइनर्स टेस्टर्स यही IT का पार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, IT इज़ वेरी वास्ट इंडस्ट्री। IT में बहुत डिफरेंट टाइप्स के रोल्स होते हैं, वेदर योर पैशन इज़ फ्रॉम बिजनेस, राइट, तो आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, BDGs हो गए, मतलब IT में प्रोजेक्ट्स लाने के लिए भी सेल्स टीम होती है who handles business development on behalf of the company. तो आप अगर देखेंगे तो IIM के या जो मोस्ट MBA जो लोग करते हैं, राइट, IIM ग्रेजुएट्स आर गेटिंग हायर्ड फॉर दैट रोल्स, राइट। सो इट्स गुड फॉर मतलब वहाँ अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है तो आप MBA कर सकते हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव करके IT इंडस्ट्री में ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीपल मैनेजमेंट अच्छा लगता है, यानी लोगों को संभालना, लोगों की रिस्क या हायरिंग फायरिंग एंड ऑल, उन सबको डिसिप्लिन में रखना, तो दैट इम्पॉर्टेंट रोल प्लेज बाय एन HR तो चलो IT में ही नहीं, नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी कॉमन बिजनेस, राइट, इट इज नीडेड, या बट आई मस्ट से कि IT ने ही ये रोल इंट्रोड्यूस कराया बिजनेसेस में कि इतने लोगों को सिस्टम में बांध के रखने वाला भी कोई चाहिए,
आप Yes. खुद ही नहीं कर सकते हो, राइट? सो देन HR प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. इसके साथ आप अगर देखेंगे तो इतने लैंग्वेजेस अभी आए हैं, तो AI डेवलपर्स हो गए, पाइथन डेवलपर्स, नाउ अ डेज लैंग्वेज स्पेसिफिक डेवलपर्स आर देयर. तो मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं. जो लोग डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं, तो आपको पता है वेबसाइट भी डिज़ाइन किया जाता है, जैसे हाँ, सोशल yes, मीडिया yes. के क्रिएटिव्स होते हैं. सो वेबसाइट डिज़ाइन करने वालों को बोलते हैं UI UX डिज़ाइनर्स. Okay. ठीक है, जो एक्चुअल टेम्पलेट बनाते हैं कि वेबसाइट ऐसी बनेगी या मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा बनेगा. सो Yeah, the framework. exactly, so it's for designers as well. The one who test, Hmm. दैट इज़ अ टेस्टेड रोल. ठीक है, फिर हैकिंग ना हो, ठीक है, या मतलब सारी चीज़ें तरीके से हो, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी, बहुत मल्टीपल लेयर्स है जिसमें IT इंडस्ट्री वर्क करती है. एंड बहुत वेराइटी ऑफ रोल्स अवेलेबल है IT में. जो मैंने कहा दीज आर द मेन रोल्स, बट इसमें भी ये तो एक डोमेन हो गया, इसमें भी आपको सब डिविजन्स या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें समझने मिलेगी. सो और अभी एक रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, यू मे नो इट एज अ BPO, राइट? जो कंपनीज प्रोडक्ट लॉन्च करती है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू प्रोवाइड द कस्टमर केयर सर्विस. Yes, yes. एग्जैक्टली. तो ताकि अगर प्रोडक्ट स्मूथ चलेगा तो उनकी जो भी क्वेरीज एंड ऑल है ना, वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो, इसके लिए. तो manage. एग्जैक्टली इसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है. ये भी जो रोल है या डिपार्टमेंट है, ये IT से ही आया है. एंड इसके बाद आप देखेंगे जितने भी कंपनीज है, प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए लाइक Amazon एंड ऑल, सबके पास ना अपना एक BPO या कस्टमर केयर सर्विस सपोर्ट है, राइट? सो what it is, these are the best IT products which rules the world, है ना? अगर आप Amazon, Flipkart या रिस्पेक्टिव इंडिया मार्ट इनको जानते हैं, ये क्या है? these are IT products only, right? Yes. which is now a big $1 billion company, right? Facebook is also an IT product. इसके पहले हमने कभी शायद सोचा नहीं होगा, बिफोर 20-30 ईयर्स शायद हम लोग पैदा नहीं हुए होंगे कि वर्ल्ड को एक सिंगल कॉल पे, या फॉर एग्जांपल नाउ अ डेज इट हैज़ बिन कॉल्ड कि जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट वर्ल्ड के पॉपुलेशन में आपका कार्ड होता है, योर आइडेंटिटी, Yeah. राइट? तो Exposing to the global level. एग्जैक्टली तो चीज़ें बहुत ईजी हुई है. बिफोर 30 ईयर्स बैक या 40 ईयर्स बैक ऐसी चीज़ें नहीं थी. बट वॉट इट इज़ एक्चुअली, दीज आर ऑल IT इन्वेंशंस, है ना? अभी AI के वजह से तो ईच एंड एवरी बिजनेस में एक सॉफ्टवेयर, एक ऑटोमेशन आ रहा है जो चीज़ों को ईजी कर रहा है. सो या इट्स द बिगेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री. यस. Now you just talked about like the major roles in IT industry. So I would like to carry it forward with what are some of the hidden roles that people don't know, that they are not aware, but they work in background to make the IT industry grow and manage and यस, बैक एंड स्टाफ होता है, Yes. अकाउंटेंट्स होते हैं, राइट? ईच एंड एवरीथिंग शुड बी पास्ड ऑन वाया अकाउंटेंट्स ओनली, राइट? देयर आर टीम लीडर्स हु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो डेवलपर्स होते हैं ना, अगर 100 developers very intelligent, if you will put in one room and you are going to ask them to work for one good project with one single vision, नहीं possible हो पाता है ये. Everyone has their own perspective. एग्जैक्टली. टीम लीडर या मैनेजर ये वो बंदा होता है जो इन सब लोगों को एक विजन में, एक सिस्टम में बांध के उनसे प्रोडक्टिविटी निकलवाता है. हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना? जिस वजह से IT कंपनीज मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स ले पाती है, बिकॉज इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन टास्क, है ना? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा जो बिजनेस एनालिस्ट है, जो या बिजनेस BDGs में भी बहुत अपर लेवल के रोल आते हैं. इफ़ यू हैव सीन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो IT के लोग हैं ये क्लाइंट साइड जाते हैं, UK US एंड ऑल. हाँ, yes. तो ये एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो बेसिकली जब भी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, अब उन्हें तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, उनके सिस्टम में भी चीज़ें बिठानी पड़ेगी. तो ये वो लोग होते हैं जो जा रहे हैं कंपनी का फेस बन के. मे बी दे Representatives. एग्जैक्टली दे आर नॉट, दे आर माइट बी दे आर द एनालिस्ट हु एनालाइज द रिक्वायरमेंट फॉर रिस्पेक्टिव कि इनके सिस्टम में हम जो बना रहे हैं
विल इट बी फ्रूटफुल फॉर नॉट. ठीक है, उसके बाद फिर डेवलपर्स वगैरह को पहुंचाया जाता है. तो देर आर सो मैनी रोल्स. इफ आई कैन से, ऐसा कोई रोल नहीं होगा जो बिजनेस वाले जितने भी कंपनीज है ना, वी नीड वर्कर्स एज वेल, वी नीड मतलब ड्राइवर्स एज वेल कि जो यहाँ से वहाँ छोड़े, है ना. अगर आपको पता होगा तो बहुत सारी कंपनीज में तो अभी बसेस भी लगे हैं विच दे आर ओनिंग. बहुत बार तो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं या खुद ही ओन कर लेते हैं. इट्स गुड फॉर सेफ्टी फॉर देयर एम्प्लॉयज. यस, एंड आई जस्ट वांट टू से कि आपने देखा होगा कि आईटी में अगर आप जा रहे हो तो कॉफ़ी, स्नैक्स, ये बहुत चलते रहता है. सो It is very popular. एग्जैक्टली. तो इनफैक्ट कैटरर्स, हाँ, राइट, कैंटीन एग्जैक्टली. एंड डाइटिशियन इज ऑल्सो गेटिंग हायर्ड. अगर आप देखेंगे तो जो लोग आईटी कंपनीज में खाते हैं मोस्टली बाहर का नहीं पॉसिबल हो पाता है, या जो रिलोकेट करके खाते हैं तो वो कंपनी में ही खाते हैं. तो देयर इज पर्टिकुलर डाइटिशियन हैज़ बिन असाइंड जो मेन्यू डिज़ाइन करती है कि इन लोगों ने ये खाना चाहिए. सो आईटी कंपनी टेक केयर्स फॉर ऑल ऑफ दैट. ये जो डाइटिशियन वाला जो मैंने फंडा बताया ना, ये आप IIM और IITs में देखोगे. Yeah, because they Yes. provide it for the students as well, ना. एक स्टूडेंट, टीचर्स, स्टाफ, Yes. क्योंकि उन लोगों को वही क्वार्टर्स दिए जाते हैं. तो Yes. इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम, राइट. तो वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का वहाँ ध्यान रखते हैं. ठीक है, मतलब डाइटिशियन जो मेन्यू देता है उसी मेन्यू के हिसाब से कैटरर को बनवाना होता है टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. सो IT इज़ अ सिस्टम, ठीक है, कि जिसमें एम्प्लॉयज़ से लेकर ग्रोथ से लेकर उनके पर्सनल चीज़ों तक सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. एंड तभी वो सिस्टम इतना फ्रूटफुल वर्क करता है कि ऑल कैन वर्क फॉर अ सिंगल बिगर विजन.